Okay, that is Dalton's atomic theory postulates all matters is composed of very small particles, that is atoms. Okay, ये बेटा postulate से recording start नहीं थी इसलिए मैं repeat कर रहा हूँ. The second point is, second point, atoms are in जो डिस्ट्रिक्टेबल होता है ना, जैसे हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं, डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इनडिस्ट्रिक्टेबल, they cannot be subdivided, created or destroyed. Okay, atoms of different elements have different properties and different weight. Okay, and now atoms of same elements are similar to one another and equal in weight. Okay, chemical combination results from the union atoms in simple numeric proportion. That means उसमें numerical proportion होना चाहिए. इसको in other words में और आप लोग simply लिख सकते हैं, that is atoms combined in simple whole number ratio to form molecules. Okay, that means atoms combine in simple whole number ratios to form a molecule. Okay, ये इस पॉइंट का ये समरी है, ये दोनों पॉइंट सही है, दोनों पॉइंट में इक्वल मार्क्स मिलेंगे. ओके, एनीवन हैव एनी डाउट्स टिल नाउ इन द एटॉमिक थ्योरी? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में किसी को कोई प्रॉब्लम है? इन द ड्रॉबैक्स ऑफ ओके, नाउ ड्रॉबैक्स क्या है इसके? दैट इज ड्रॉबैक्स. ओके, discovery of isotopes and isobar lead to failure of Dalton's theory. Okay, number 1 point, that is discovery of isotopes and isobar showed that atoms of same element may have different atomic masses, that is isotopes. Okay, isobar होगा. Okay, atomic mass. Okay, and
same elements may have different atomic mass, that is isotopes. Okay, and atoms of different kinds may have same atomic mass, that is called isobar. All of you clear that point? अब आइसोटोप्स एंड आइसोबार क्या होते हैं, ऑल ऑफ यू मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ. दैट मीन्स ये एक्स कोई एटम्स है एंड जेड एंड ए इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ, दैट मीन्स ए मीन्स mass number, that is equal to number of proton plus number of neutrons. Okay, and Z equal to, Z means atomic number, atomic number, that is number of electrons or number of protons. Okay, ये आप लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया होगा इसका. ओके, एंड A इज इक्वल टू N प्लस P, N प्लस P सभी लोग जानते हैं, एंड Z इज इक्वल टू E और P, E इज इक्वल टू P. बोथ आर द जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है इसकी ऑब्जर्वेशन है. ओके, क्लियर? इफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको फाइंड करना है, इफ वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ओके, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले से आ जाएंगे, दैट मीन्स n इज इक्वल टू a माइनस p. ओके, a माइनस p हो जाएगा, क्लियर, एंड a इज इक्वल टू एंड देन p यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस जेड भी हो सकता है, यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से. तो इस फॉर्मूले से और यहाँ पर p भी हो सकता है, तो इस फॉर्मूले से हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं. ऑल ऑफ यू क्लियर ना? ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज आइसोटोप्स. आइसोटोप्स क्या होते हैं, लाइक आइसोटोप्स एंड आइसोबार. ओके, हम यहीं पर स्टडी कर लेते हैं आइसोटोप्स एंड आइसोबार को क्या होते हैं. Isotopes, atoms having same number, having same atomic number. Okay, so anyone have any doubts? किसी के वॉइस आया मेरे पास? Same atomic number, that is Z, but
different atomic mass. Mass number, that is A. Okay. These isotopes exist. You can call these isotopes exist due to different in numbers of neutrons in the nucleus. Okay. Now अभी क्या है, we have studied, that means 1H1, 1H2 and 1H3. These are the, इसमें number of protons, इसको बोलते हैं, number of neutrons इसमें क्या है, 0 है. Okay. Number of neutrons 0 and number of neutrons 1, number of neutrons 2. Okay. Neutrons कैसे, प्लीज पटकन उठ आता. A minus Z, that means देते मी आणून देते तुझ्या आंघोळीला. 1 minus 1 0, 1 minus 2, sorry इधर पे 2 minus 1 1, मध्ये मी देते आणून. 3 minus 1 is equal to 2. Okay, kindly mute yourself. Okay, Sujal, mute कर लो अपने आप को. No, sir, it was not my. Okay. जो भी हो अपने आप को म्यूट कर लो. इफ आपके बैकग्राउंड में कोई नॉइस हो रहा है तो आप अपने आप को म्यूट कर लो. ओके. किसी भी पॉइंट पे अगर आपको डाउट है तो आप पूछो, अदरवाइज आपको कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो आप वो भी पूछ सकते हो. ओके. जैसे आपको आगे जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ उसमें आपको प्रॉब्लम है, देन आप लोग वेट करो 5 to 10 मिनट्स. एंड अदरवाइज फ्रॉम द स्टार्टिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है, डाल्टन थ्योरी, इधर उधर फोर्ड मॉडल्स, जो भी प्रॉब्लम है आप लोग पूछो. ओके. ओके, वेरी गुड. नाउ इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटियम. प्रोटियम इसका नाम है प्रोटीन. अच्छा ये बताओ, ये टॉपिक आपका कवर्ड हो चुका है या नहीं कवर हुआ है? हो गया. हो गया ना. तो मैं इसको थोड़ा सा स्पीड में ले चलता हूं तो चलेगा ना? आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके ना, मैं थोड़ा सा स्पीड आपका बढ़ाता हूं, अभी बढ़ाता हूं. दैट मीन्स अगर आपको किसी भी पॉइंट पे प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना. ओके. इस एलिमेंट्स का नाम, एनीवन टेल मी द नेम ऑफ दिस एलिमेंट्स? And these elements D and deuterium and tritium. ओके. इसको D से and T से इसको दिखाते हैं. इसको P से नहीं दिखाते हैं बिकॉज P से हमारा फॉस्फोरस भी होता है. सो इसको डायरेक्टली हम H से शो करते हैं. ओके. ये एलिमेंट्स आप 11th में और मे बी 12th में आप लोग स्टडी करोगे, बिकॉज प्रोटियम को P से क्यों नहीं शो करते हैं, एंड जबकि क्या होता है ड्यूटेरियम को D से एंड इसको T से शो करते हैं. Because in our periodic table protium P elements already exist है, that means that is phosphorus. So इसको डायरेक्टली हम लोग H से दिखाते हैं. क्लियर है? According to Dalton's isotopes जो है डिफरेंट एलिमेंट्स, ये डाल्टन्स ने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स different elements have different properties and different weight. Okay, but according to Dalton's
same elements similar to one another and equal in weight. Okay, but यहाँ पर इसका atomic weight all three elements have the different atomic weights. Okay, because Dalton's का जो fourth number point है वो कहता है कि all जो same elements हैं they have similar or equal weights. Okay, similar properties and equal weights, but यहाँ पे Dalton's की theory fail कर जाती है. That's why Dalton's की ये drawbacks है. Okay, similar isotopes में बोल सकते हैं हम लोग. Similar topic है हमारा isotopes. Okay, isotope. Sorry, isobar में. Okay, isobar में. Isobar that is atom having different atomic number, that is Z, but same mass number, that is A. For example, okay, that is argon and calcium. इसका एटॉमिक वेट 40 है एंड इसका भी एटॉमिक वेट 40 है, बट इसका एटॉमिक नंबर 80 है एंड इसका एटॉमिक नंबर 20 है. ओके, एंड दिस इज द गैस इन नॉर्मल एसटीपी एंड दिस इज सॉलिड. ओके, बट एज पर द डाल्टन, डाल्टन क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू डाल्टन, according to Dalton's different isobar, Dalton's must be atoms of same element, but they are atoms of different elements. All of you clear ना? डाल्टन्स क्या बोलता है? आइसोबार मस्ट बी द सेम एलिमेंट, जो भी आइसोबार है मस्ट बी द सेम एलिमेंट. ये क्या बोलता है कि जिसका वेट इक्वल है, दैट मीन्स वो सेम एलिमेंट्स होना जरूरी है. बट यहाँ हम देख रहे हैं कि वेट इक्वल है बट डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स, तो यहाँ पे डाल्टन्स की थ्योरी ब्रेक हो जाती है. ओके, नाउ सेकंड ड्रॉबैक्स. दिस इज द फर्स्ट ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स. ओके, फर्स्ट ड्रॉबैक्स के अंदर में हम लोग इतना पढ़ रहे थे. इन द सेकंड ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स, दैट इज, लेट मी चेंज द कलर, रेड कलर में इसको बताता हूँ. ओके, सेकंड ड्रॉबैक्स, एटम्स कैन बी स्प्लिट more fundamental particles, like that is electron, proton, neutrons. Okay, in that times जब डाल्टन स्टडी कर रहा था, इसका एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी. दैट्स व्हाई वो उसको नहीं बता पाया कि एटम्स के अंदर भी उसके सब सेल होती हैं, सब पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स. ओके, सो ये भी उसका ड्रॉबैक्स है. अभी मॉडर्न टाइम में क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी हो चुकी है, तो डाल्टन की थ्योरी फेल हो चुकी है. ऑल ऑफ यू क्लियर ना? नाउ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. Now, discovery of electrons, all of you know the discovery of electrons की कैथोड रे से, जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई है.
मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड पढ़ाता हूँ आप लोगों को डायरेक्टली फिगर बना करके। ओके ना, ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में क्या क्या करते हैं, ऑल ऑफ यू क्लियर है कि एक यहाँ पे ट्यूब होता है, उसको क्या बोलते हैं? कैन एनीवन नेम दैट ट्यूब? ट्यूब, इसका नाम बताओ मुझे। डिस्चार्ज ट्यूब। वेरी गुड। Discharge tube. ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है। ओके, डिस्चार्ज ट्यूब। यहाँ पर जो गैस होती है, गैस का वेरी लो प्रेशर रखते हैं, बिकॉज हम इसको वैक्यूम में भी कर सकते हैं, वैक्यूम में इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बट वैक्यूम में हमको कोई भी इसमें प्रेशर रखना पड़ता है थोड़ा सा, इसलिए इसको वेरी लो प्रेशर रखते हैं। मेरे पास एक फिगर है, मैं यहाँ पे आपको फिगर दिखाता हूँ। ऑल ऑफ यू कैन सी द फिगर। फिगर देख रहे हो आप लोग? Yes, sir. वेरी गुड। नाउ इस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। यहाँ पर इसका नाम लिखा है, एंड दिस इज अ कैथोड, दिस इज नेगेटिवली चार्ज, एंड दिस इज एनोड, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज। ओके, यहाँ पर एक हाई वोल्टेज की बैटरी लगा देते हैं। ओके, 1000 to 10,000। ओके, इतने वोल्ट की बैटरी यहाँ पर फिट कर दिया। ओके, यहाँ पर एक वैक्यूम लगा रहता है, यहाँ यहाँ से क्या होता है, इसके अंदर जो भी गैसेस होती हैं वो सारी गैसें, हाँ इसमें नीचे लगा हुआ है। ओके, इसमें ये वैक्यूम पंप लगा हुआ है। इस वैक्यूम पंप के थ्रू हम लोग इसमें जो लो प्रेशर स्टेबलाइज कर देते हैं। इसमें लो प्रेशर दैट मीन्स 10⁻³ mm के आसपास का टेम्परेचर स्टेबलाइज, सॉरी प्रेशर स्टेबलाइज कर देते हैं। ओके, समझ में आया? एंड उस टाइम पे ये एक्सपेरिमेंट है ना, माइकल फेराडे भी कर रहे थे, डाल्टन्स भी कर रहे थे। ओके, बट माइकल फेराडे इससे, हम लोग कहना नहीं चाहिए, बट माइकल फेराडे इससे अच्छे साइंटिस्ट थे, बिकॉज वो हर चीज में ज्यादा प्रिसाइसली देखते थे। डाल्टन्स ने क्या हुआ, जल्दबाजी में एक्सपेरिमेंट करके बता दिया। डाल्टन्स और सॉरी थॉमसन्स के टाइम पे। ओके जी थॉमसन्स के टाइम पे 1850s के टाइम की बात है बेटा। ये 1844 में क्या हुआ, जो जे डाल्टन्स था, सॉरी जॉन डाल्टन्स था, उसकी डेथ हो गई थी। आफ्टर द डेथ ऑफ जॉन डाल्टन्स ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट्स चलने लगे ट्रेंड्स में, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स की खोज करनी थी, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी करनी थी। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी करने के लिए माइकल फेराडे भी लाइन पर थे एंड जे थॉमसन भी लाइन पे थे। एंड ऐसा नहीं किसी एक आदमी ने ये डिस्कवरी की है, बहुत सारी ऐसी। अभी हम लोग क्या है कि कोई भी कंट्री में डिस्कवरी होती है, देन हम लोग होल क्रेडिट टू उसकी लेबोरेटरी को एंड उसके ऑर्गेनाइजेशन को जाता है। लाइक इसरो, अगर कोई डिस्कवरी इंडिया में होती तो इस पूरा, जैसे स्पेस के ऑर्गेनाइजेशन में कुछ डिस्कवरी हुई तो हम लोग पूरा जो भी है उसको क्रेडिट किया किसको देते हैं, इसरो को देते हैं। उस टाइम पर भी जो जे थॉमसन थे, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट ऑर्गेनाइज किया तो उनको क्रेडिट चला गया। अभी इसमें होता क्या है कि यहाँ पर एक एनोड प्लेट लगा दिया, यहाँ पर एक कैथोड प्लेट लगा दिया। ओके, नाउ जब हाई वोल्टेज इसमें अप्लाई करते हैं तो यहाँ से कुछ रेज निकलती हैं, एंड रेज डायरेक्टली हमारे कैथोड पर पड़ती हैं। समझ में आया बेटा? सॉरी, एनोड पर आती हैं। अब एनोड पर जो रेज आती है, यहाँ पर है एक जो गोल्ड प्लेटेड, सॉरी यहाँ पर एक लेयर कर देते हैं, जिसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जब मूविंग पड़ता है तो वो लेयर क्या चमकने लगती है, ब्राइटनेस। वो लेयर किसकी होती है? कैन एनीबॉडी नेम दैट लेयर? उस लेयर का नाम बताओगे? क्या केमिकल होता है एंड क्या उस लेयर में होता है? जिंक सल्फाइड।
जिंक सल्फेट की लेयर होती है, फ्लोरोसेंट जो फ्लोरोसेंट लेयर होती है ना, दैट मीन्स उस पे अगर कोई पार्टिकल्स पड़ता है तो वो लेयर चमकने लगती है, दैट मीन्स वो ब्राइटनेस हो जाती है। आप लोग अभी पढ़ोगे 11th में हो आप लोग फिजिक्स में, तो ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट है, काफी अच्छा एक्सपेरिमेंट है। ओके, तो यहाँ पर एक जिंक सल्फेट की लेयर होती है। जिंक सल्फेट की लेयर इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लगाई बिकॉज उसका एक पर्पज था कि अगर कोई पार्टिकल्स यहाँ से निकलकर इस तरफ आते हैं तो हमको, अगर पार्टिकल्स एक तो नेचुरल में हमको दिखते नहीं है बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स इनविजिबल है, हमको नॉर्मल से आई से हम देख नहीं सकते हैं, तो जो पार्टिकल्स यहाँ पर आए तो साइंटिस्ट को इतना पता लगा कि कुछ तो यहाँ से निकलकर इस वाली लाइन पे पड़ा है, यहाँ पर जो ग्रीन ग्लो हो रहा है यहाँ पर कुछ तो आया है, दैट मीन्स वो आया है, वो यहाँ से निकल कर आया है। ओके, तो ये साइंटिस्ट को आइडिया लगा कि इस प्लेट में क्या निकला है। देन फर्दर जब उसको स्टडी किया गया, यहाँ पर देखा गया इस एनोड पर कुछ कुछ होल कर दिए गए यहाँ पर, बिकॉज तो इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली इस एनोड के होल से पास होके इस प्लेट में जो फ्लोरोसेंट लेयर है, इस पे जिंक सल्फेट की लेयर होती है, वहां पर जाके चमकने लगते हैं। ओके, तो यहाँ से आइडिया लगता है कि कैथोड रेज निकलती हैं। ओके, अभी क्या ऑब्जर्वेशन हुआ? ओके, फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्पार्क ऑन द जिंक सल्फाइड स्क्रीन वी कंक्लूड दैट कि कैथोड रे आर चार्ज। अभी हमने पता किया कि ये यहाँ से कोई ना कोई चार्ज निकला। ओके, फ्रॉम द डेविएशन ऑफ कैथोड रे टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एक्सटर्नल बैटरी। अभी ये हमको पता लगा कि यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहाँ से कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे या जो भी रेज निकली हैं इस तरफ निकलेंगे। तो जब ये नेगेटिवली चार्ज है तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज वाले एलिमेंट्स निकलेंगे एंड किसकी तरफ जाएंगे? टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। एवरीवन क्लियर ना? अभी पॉजिटिव चार्ज की तरफ ये लोग जाते हैं तो हम लोगों ने आइडिया लगाया कि ये नेगेटिव चार्ज ही है। इनिशियल में वी कैन नॉट डिफाइन कि ये कौन सा चार्ज है यहाँ पर। ओके, बट जो एलिमेंट्स इस तरफ जाते हैं, दैट मीन्स इस तरफ मूव करते हैं पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो वी कैन कंक्लूड दैट कि ये नेगेटिवली चार्ज ही होंगे। अभी हम इसको इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहा किसी ने, इसको हम लोग कैथोड रे कहते हैं। एंड कैथोड रेस आर द मेड ऑफ द पार्टिकल्स। कोई भी रे बनती है पार्टिकल से मिलकर ही तो बनती है, तो वो पार्टिकल बनती है, वो पार्टिकल आर द नेगेटिवली चार्ज। क्लियर ऑल ऑफ यू? ऑल ऑफ यू क्लियर ना, या किसी को कोई डाउट है? ओके, नाउ अभी इस टाइम पे हमारा ना प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई है, ना ही सिर्फ कैथोड रे की डिस्कवरी हुई, उसको इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं बोले अभी कोई लोग। ओके, देन द माइकल फैराडे सोच दैट की केमिकल चेंजेस द कलर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द इलेक्ट्रोड। ओके, देन माइकल फैराडे ने क्या किया, इसी में एनालिसिस किया। माइकल फैराडे ने क्या किया कि माइकल फैराडे सोच दैट की इफ वी कैन चेंज द गैसेस इनसाइड द ट्यूब, इस ट्यूब के अंदर जो भी गैसेस है उस गैस को हम लोग चेंज करके देखा। सॉरी, माइकल फैराडे चेंजेस द गैसेस इनसाइड द ट्यूब, ओके, एन इलेक्ट्रोड ऑफ द कैथोड। तो उसने देखा कि जो भी रेज हैं वो फिर भी वो रेज निकलती हैं यहाँ पर, एंड फिर भी वही कलर शो करती हैं, कलर यहाँ पर जो ये ग्लो करने लगती है स्क्रीन, बट जो रेज निकलती हैं वो रेज यहाँ पर वो इनविजिबल होती हैं, दैट मीन्स वो कोई भी कलर शो नहीं करती हैं और हमको नहीं दिखती हैं वो रेज। एवरीवन इज क्लियर ना? ओके, नाउ माइकल फैराडे नेक्स्ट सोच दैट कि अभी इसकी जो स्टडी है, ऑब्जर्वेशन है, इसने बोला कि जो कैथोड रे हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वी कैन कॉल इलेक्ट्रॉन्स और cathode ray does not depend on gases and does not depend on
किस टाइप का इलेक्ट्रोड है वो भी डिपेंड नहीं करता कि कैथोड इलेक्ट्रोड तो होना चाहिए यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज, बट वो इलेक्ट्रोड किसका है वो यहाँ पे डिपेंड नहीं करता। तो इससे क्या आइडिया लगता है बेटा हमको, इससे आइडिया ये लगता है कि जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज रहता है, इसको तो इस गैस के जो गैस का कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, दैट्स वाई इसका लो प्रेशर रखते हैं। ओके, यहाँ पर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो, दैट मीन्स अगर रे आई यहाँ पे बीच में कोई लेयर पड़ गई है तो वो लेयर उसके ऊपर नहीं पड़ेगी। इसको एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख के देखा, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रख के देखा, ओके, एंड वो ऑब्जेक्ट रख के देखा तो उसकी क्या यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख के देखा तो वो ऑब्जेक्ट क्या यहाँ पर उसकी इमेज, इमेज बोलते ना, सॉरी इमेज क्या बोलते हैं उसको, ये बोलते शैडो बना, शैडो बन गया। ओके, ऑल ऑफ यू नो दैट शैडो, कि अगर जैसे हमारा सन से रेज निकलती हैं, हम सन के साइड में खड़े हो जाते हैं, देन सन की हमारी अपोजिट डायरेक्शन में या सन की अपोजिट डायरेक्शन में एक शैडो बन जाता है। दैट्स व्हाई वी कैन कॉल, हम कह सकते हैं कि जो भी रेज निकलती हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में रेज निकलती हैं। क्लियर है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन में रेज निकलती हैं तो हम इसको रेज बोल दिया। ओके, एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोड एंड गैसेस, जो इसके अंदर गैस है, ये कैथोड रे डज नॉट डिपेंड ऑन द गैसेस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब, और डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ कैथोड, की कौन सा कैथोड लगा वो डिपेंड नहीं करता। तो इससे कंक्लूजन निकलता है कि जो एनोड रे, एनोड है, एनोड हमारा इलेक्ट्रोड है, उसको तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स खींचना है, बिकॉज ऑफ हाई वोल्टेज उसको इलेक्ट्रॉन्स खींचना है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स किसके आएंगे, इस इलेक्ट्रोड से ही वो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। दैट मीन्स जिस टाइप का इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रोड होगा, उसी से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। वो डिपेंड नहीं करता कि कहीं से बाहर से निकले हैं या किसी गैस से बने हैं या कहीं से आए हैं या यहाँ से चार्ज देने के, वो इसी इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ये इसने कंक्लूजन निकाला माइकल फैराडे ने। ओके, क्लियर है, समझ में आया। दीज रे कॉल्ड, जो कैथोड रे है, कैथोड रे और वी कैन कॉल कैथोड रे पार्टिकल्स। ओके, नाउ द रिजल्ट ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट, मैं आपको रिजल्ट शो करके बताता हूँ। ऑल ऑफ यू लिसन केयरफुली, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ रिजल्ट क्या है, अगर किसी के लिखने की जरूरत है तो मुझे बता देना, बिकॉज ऑलरेडी आपने पढ़ चुके हैं तो रिजल्ट बताऊंगा आपको। ओके, द कैथोड रे स्टार्ट फ्रॉम द कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स द एनोड। ओके, पॉइंट नंबर 1 इज स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट मीन्स ये कैथोड है, ये हमारा एनोड है। Okay, and these rays themselves are not visible, but their behavior can be observed with the help of certain kind of material, that is fluorescent or phosphorescent। जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा देते हैं उसके थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई रे आके पड़ रही हैं, बट दीज रे कैन नॉट बी विजिबल इन द, ओके, इन द नॉर्मल आइज। ओके, can't visible। okay, to see their behavior और इसको ऑब्जर्व कर देते हैं। ओके, ऑब्जर्व देयर बिहेवियर विद द हेल्प ऑफ certain kind of materials, that is that material
fluorescent. Okay. All of you clear now? Third point, in the absence of electrical or magnetic field, the ray travels in a straight line. Okay. Then electricals and magnetic field, जो भी मैंने बताया, ray travels in straight lines. Travel ray travels in straight lines. Okay. In the absence of electrical or magnetic फील्ड, अगर उसमें इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं तो वो रेज हैं, निगेटिवली चार्ज हैं, एंड जिस तरफ पॉजिटिवली चार्ज थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा देन उसकी तरफ ये मूव कर जाएंगे, मे बी डाउनवर्ड और अपवर्ड मूव कर जाएंगे. ओके, वो आप लोगों ने क्लास में स्टडी किया होगा. वी आर नॉट गोइंग टू इन डिटेल्स. ओके, समझ में आया? In the presence of electric and magnetic field, the behavior of cathode ray is similar to the expected from negative charge particles. Okay, जो negative charge particle होते हैं जैसा वो behave करने वाले हैं, हमको आइडिया लगा कि negative charge particle है, अगर वहाँ पे electric field या magnetic field लगाएंगे हम लोग तो negative charge particle किस तरफ शिफ्ट होंगे? जो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में होंगे उस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे. एज एक्सपेक्टेड जो भी होना है वो होके रहेगा. क्लियर? ओके. एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स of the cathode ray do not depend upon the material of electrodes and nature of gases. Okay, then the fourth point is characteristic of cathode ray does not depend on, किस पे डिपेंड नहीं होता? Material of electrode and nature of gas present in the cathode ray tube. क्लियर? कोई भी मैंने एक्स्ट्रा चीज तो नहीं लिखी अभी तक. एनीवन? देयर आर वेरियस टाइप, बहुत सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पर. ओके, किसी को कोई डाउट है क्या? एनीवन? नाउ next point is cathode ray produce the heating effect. Okay, when these ray are made to extract the metals, foils are later get heated. That means जो ये रे है, मैंने अभी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट बताया था, एक्सपेरिमेंट दिखाया कि जो ये फोटोज है ये यहाँ पर हीट निकलते हैं एंड ये जो प्लेट लगी यहाँ पर हीटेड हो जाती है. ओके, हॉट हो जाती है. दैट्स व्हाई वी कैन कॉल कि कैथोड रे है, इसमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट रहती है. क्लियर? एंड कैथोड रे कैन पास थ्रू द थिन फॉयल ऑफ मेटल लाइक एल्यूमिनियम. ओके, एंड कैथोड रे आयनाइज द गैसेस थ्रू विच दे पास. ओके, जिस गैस से ये पास होती है उनको आयनाइज कर देती हैं. क्लियर हो गया? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस इज जो सर जे थॉमसन, इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार मार्क कर लीजिए इसमें. ओके, जे थॉमसन in 1897, okay, confirmed that
बाय द सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। ओके, जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए उसके थ्रू कंफर्म किया कि क्या कंफर्म किया, एनीबॉडी बताओगे मुझे? चार्ज बाय मास, ओके, दैट इज E by M ratio of the particles that make of cathode ray by measuring the deflection of the ray with varying magnetic field and electric field. Okay, then J.J. Thomson performed the same experiment using the metal of cathode and anode as well as a different type of gases. जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया बहुत टाइप से मेटल्स एंड जो कैथोड के लिए चेंज किया, एनोड के लिए चेंज किया, इन द E by M रेशियो ऑलवेज सेम और ऑलवेज कांस्टेंट आया। E by M रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट आया। ओके, क्लियर है ना? E by M रेशियो दैट मीन्स E by M. Anybody tell me the value of E by M? That is 1.76 into 10 की पावर 11 कूलम पर केजी। ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आई। तो अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू हमने जो ऑब्जर्वेशन लिखी है ना, इस वैल्यू से वो ऑब्जर्वेशन निकाली गई है सारी कि इस वैल्यू से क्या है, जब मास चेंज, ये E by M का रेशियो चेंज नहीं हो रहा, दैट मीन्स टाइप ऑफ जो किस टाइप का गैस है एंड इलेक्ट्रोड है उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। हमको क्या सेम इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, किसी भी टाइप का गैस प्रेजेंट हो, बस उसका प्रेशर लो होना चाहिए। क्लियर है? The E by M ratio of electrons was found to be same irrespective of the nature of electrodes and nature of gas taken in discharge tube. Okay, this shows that the electrons are the universal constituents of all metals. Okay, that means the E by M ratio for electrons was found to be same irrespective of the nature of cathode and nature of gas taken in discharge tube. Okay, this shows that electrons are universal constituent of all matter. All of you clear? Anybody have any doubts?
किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, दैट इज अभी जो EY/M रेशियो हो गया, इररिस्पेक्टिव कैथोड रे प्रेजेंट्स इन ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेम नेचर, कैथोड रे हो गया। मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, एनीबॉडी नोज द मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट्स? Yes, sir. ओके, क्या होता है? एनीबॉडी बताओ बेटा मुझे। टेल मी द मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट्स। In this, oil droplets which are in mist form were allowed to enter through a tiny hole. ओके, एंड नेक्स्ट आगे। From this experiment, Mulliken concluded that magnitude of electric charge Q on the droplet is always an integral multiple of the electric charge. ओके, तो आई थिंक ऑल ऑफ यू सबको आइडिया होगा कि मिल्कन्स ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या है। ओके, अब मैं इसको बताऊं, किसी को कुछ भी डाउट हो तो मैं इसको एक्सप्लेन करूं, अदरवाइज मैं जो क्या है डिस्कवरी ऑफ एटम्स में चलता है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स में चलता हूं एंड न्यूट्रॉन्स में चलते हैं हम लोग। ओके, एनीबॉडी हैव एनी डाउट्स या मैं इसको एक्सप्लेन करूं? अदरवाइज हम लोग मूव चलते हैं आगे। मुझे कंफर्म करो बेटा। एक्सप्लेन करूं? ओके, मैं इसको अभी एक्सप्लेन नहीं करता हूं। ओके, इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो अगर किसी को प्रॉब्लम है आप इसको पढ़ के आना। ओके, या कल नहीं, परसों नहीं, आप इसको आफ्टर द क्लास इसको रीड करना। यस शिव प्रसाद, एनी डाउट्स? No, sir. आपने हैंड रेज किया। ओके, By mistake. ओके, सो मिल्कन्स ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आप लोग स्टडी करना। ओके, इफ कोई माइनर से माइनर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, दैट मीन्स मेरे को मैसेज करना, मैं मैसेज के थ्रू आपका डाउट क्लियर करूंगा। ओके, इन केस मोर देन 10 to 20 स्टूडेंट अगर आप लोगों को नहीं डाउट है तो मुझे आप बता देना कि सर हमको डाउट है, सबको डाउट है, तो मैं उसको क्लास में प्रॉपर लेक्चर के थ्रू, जैसे आज मैं सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। ओके, क्लियर है? ये जो सारी चीजें हैं, देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर से बेसिकली क्या होता है, मिनिमम 2 क्वेश्चन, ओके, टू 4 क्वेश्चन मैक्सिमम, मिनिमम 2 क्वेश्चन आईआईटी में आना ही है, जेई में। ओके, एंड नीट में तो इसके क्वेश्चंस 4 to 5 क्वेश्चंस हो सकते हैं या 6 भी हो सकते हैं। ऑल ऑफ यू क्लियर ना? नीट में इसके क्वेश्चन, बिकॉज नीट में 45 क्वेश्चन आते हैं एंड जेई में थोड़ा सा क्वेश्चंस का नंबर्स कम रहता है। ओके, सो दैट्स व्हाई ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। दीज आर द बेसिक जो हम लोग बेस डेवलप कर रहे हैं, वो चीजें हैं। ओके, इसमें से छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में। नाउ अभी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स में हम लोग चलते हैं। मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ऑल ऑफ यू मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आप लोग को पढ़ के आना है इन द क्लास में। ओके, नेक्स्ट क्लास में, दैट इज डिस्कवरी ऑफ, बिकॉज टुमारो मे बी जिस दिन क्लास लगे, ओके, मैं भी ये नहीं बोलता हूँ टुमारो 25 को नहीं बोलता हूँ, जिस दिन भी आप हमारी क्लास लगे, दैट मीन्स मिल्कन्स ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, 2 to 4 क्वेश्चंस दूंगा, आप लोग को सॉल्व करना है। दैट्स व्हाई मैं बार बार फोर्स कर रहा हूँ कि आपको सॉल्व करके लाना है। ओके, Okay, sir. Yes, sir. ओके, थोड़ा सा उसमें फिजिक्स इन्वॉल्व है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर आप उसमें थोड़ा सा पढ़ोगे, उसमें फिजिक्स इन्वॉल्व है, तो आपके फिजिक्स वाला भी चैप्टर वो कंक्लूड हो जाएगा, और केमिस्ट्री वाला तो होना ही होना है, हम लोग पढ़े तो थोड़ा सा हल्का सा फिजिक्स उसमें इन्वॉल्व है।
तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ. ओके, नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज, sorry, chapter next topic is discovery of protons. ओके, इसको क्या बोलते हैं, किसकी थ्योरी है ये? एनीबॉडी नेम दैट साइंटिस्ट? Goldstein. Goldstein. वेरी गुड. ओके, किसी किसी बुक में आपको इसका नाम नहीं मिलेगा, बट जो एनसीईआरटी है, जेई है, नीट है, ये ऑल थ्री एक्सेप्टेड दिस नेम. ओके, बट आप नेट पे सर्च करोगे या मे बी कहीं पर ये अलग अलग टाइप का मिल जाएगा, बट आपको यही याद रखना. ओके, क्वेश्चन तो नहीं आने वाला, बट थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए कि हम लोग एनसीईआरटी बुक से पढ़े हैं, जो हमारा सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस है, उसको हम लोग फॉलो करके पढ़ रहे हैं. नाउ इसमें कौन सा एक्सपेरिमेंट करते हैं? Anode ray. वेरी गुड. एनोड रे एक्सपेरिमेंट. ओके, इसमें क्या करते हैं, क्या होता है ऐसा, मुझे कोई बताओ, ब्रीफ में बताओ, एनोड रे एक्सपेरिमेंट क्या होता है? Anybody have any idea anode ray experiment? Now इसमें सुनो, we know that the atoms is electrically neutrals. ये किसने बता दिया था इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स? ये जो जे थॉमसन की थ्योरी है उसने बताया. उसके बाद माइकल फेराडे ने बताया कि एनोड्स आर, जो सॉरी एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स. ओके, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ओके, दैट्स व्हाई इट कंटेन द नेगेटिव चार्ज. अभी हमको आइडिया लग गया कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स. ओके, ये हमको आइडिया लगा. ओके, बिफोर दैट हमको ये आइडिया लगा कि एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होता है. एंड राइट आफ्टर दैट ये आइडिया लगा कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स. दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज को काउंटर करने के लिए कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज होगा इसके अंदर. होगा कि नहीं होगा? एनीबॉडी? ओके, देन दिस थ्योरी की नेगेटिव चार्ज को काउंटर करने के लिए कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा. दिस वाज कंफर्म्ड बाय साइंटिस्ट दैट इज गोल्डस्टाइन. ओके, इसने कंफर्म किया. ओके, इन द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट विद द perforated cathode, on passing high voltage between the electrode of discharge tube, it was found that the same ray were coming from the side of anode, which was passed through the hole of cathode. और these ray, जो anode ray हैं, consisted the positively charged particles formed by ionization of gaseous molecule by the maximum. ओके, अभी मैक्सिमम किस में होता है, मिनिमम किस में होता है, वो मैं बताता हूँ. ओके, नाउ जो सिमिलर एक्सपेरिमेंट है, ओके, एक्सपेरिमेंट दैट इज, अभी हम लोग इसको डिजाइन करते हैं.
Okay, this is the negative charge and this is positive charge. Okay, these are the holes, that is perforated cathode. Okay, यहाँ पर हल्के हल्के से होल कर दिए. ओके, नाउ नियरली 10 के वोल्टेज का हमने यहाँ पर वोल्टेज लगाया एंड दिस इज द एनोड एंड ये क्या है, गैस एट वेरी लो प्रेशर. लो प्रेशर पे यहाँ पे इनसाइड इस चैम्बर में गैस इंटर किया एंड देन इसके बाद क्या, ये क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब. डिस्चार्ज ट्यूब है, दिस इज कैथोड एनोड. एनीबॉडी, किसी को डाउट तो नहीं होगा इस फिगर में. एंड देन इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इसमें बताया मैंने कि इट वाज फाउंड दैट द रे वर कमिंग, जब इसमें हम लोग बहुत ही हाई वोल्टेज लगाते हैं, देन रे वर कमिंग फ्रॉम द कैथोड. कैथोड से रे जब निकलती हैं एंड एनोड की तरफ जाती हैं तो हमको आइडिया लगा कि ये पॉजिटिवली चार्ज होगा. एंड पॉजिटिवली चार्ज जब रेज इस तरफ जाएंगी तो यहाँ पर भी सेम एक्सपेरिमेंट किया हमने. वो रेज हमको दिखती नहीं है, ये रे हमको दिखी नहीं है, तो हमने यहाँ पर होल कर दिया कैथोड में, दैट इज परफोरेटेड कैथोड. अब इन होल से निकल कर डायरेक्टली इस पर जो पड़ते हैं एंड यहाँ पर एक चमक बनती है. चमक मीन्स क्या, साइनिंग टाइप की आती है. ओके, एंड दैट साइनिंग कन्वर्ट, इस साइनिंग से हमको आइडिया लगता है कि यहाँ से कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट्स निकलते हैं. दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, प्रोटॉन्स बोलते हैं. अभी ये प्रोटॉन्स कहाँ से आते हैं? ओके, okay, these protons consist positively charged particles formed by the ionization of gas molecule by the cathode rays. Okay, अभी हमको क्या आइडिया लगा इन बिहाइंड दैट एक्सपेरिमेंट. अभी क्या होगा, सेम एक्सपेरिमेंट तो ये भी है, गैस वही है, कैथोड वही सब कुछ, तो यहाँ से कैथोड रेज तो निकलेंगी एंड कैथोड रेज निकलेंगी एंड जब यहाँ से कैथोड रे निकलेंगी तो सिमिलर यहाँ पर एक वो हॉलो टाइप का यहाँ पर चार्ज की कमी हो जाएगी इस तरफ. तो यहाँ से कुछ पॉजिटिव चार्ज जाएगा, इस तरफ जाएगा एंड जब पॉजिटिव चार्ज जाएगा यहाँ से फ्रॉम द राइट साइड से पॉजिटिव चार्ज टू गोज टू द लेफ्ट साइड, तो जो इसमें गैस भरी रहती है, गैस फिल रहती है, उस गैस का आयनाइजेशन हो जाता है. तो जो गैस होते हैं, गैस का आयनाइजेशन हो जाता है, तो जो पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं ये एनोड से मूव नहीं करते, ये पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं फ्रॉम द आयनाइजेशन गैस. तो गैस के पॉजिटिव चार्ज होते हैं, गैस के पॉजिटिव चार्ज होते हैं, वो मूव करने लगते हैं. क्लियर है? जब फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन है. ओके, अब हाइड्रोजन 1H1 होता है. अभी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स है. ओके, इसमें हाइड्रोजन गैस भरी है, अभी एक इलेक्ट्रॉन्स है. ओके, अभी जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन्स है, एक प्रोटॉन्स है, यहाँ से जब ये चीज जाएगी, देखो जब रेज निकलती हैं, रेज क्या है, आयनाइज कर देती हैं गैस के मॉलिक्यूल्स को. सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ से कैथोड रेज, ये कैथोड रे आ रही है. ओके, एंड ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स है. ओके, नाउ हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स में जब गैस फिल होती है, इसमें क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है थोड़ा सा हल्का सा, वेरी लो टेम्परेचर नहीं होता, थोड़ा सा, सॉरी टेम्परेचर नहीं, लो प्रेशर होता है, प्रेशर हल्का सा ज्यादा होता है. बिकॉज लो प्रेशर करने से वो एक टाइप का वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, तो वहां पे सिर्फ कैथोड रे निकल जाएंगे. लो प्रेशर होने से क्या होता है कि यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स घूमते रहते हैं. अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई भी गैस के मॉलिक्यूल्स घूमते रहते हैं तो यहाँ से कैथोड रे निकलेंगी. कैथोड रे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, एंड जब इससे टकराएंगी तो यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, इससे टकराएंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा. इस तरीके से जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, उनसे जब कैथोड रे टकराती हैं, दैट मीन्स आयनाइजेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स बाय द कैथोड रे. यहाँ पर आयनाइजेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स बाय कैथोड रे. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है
कि जो गैस का आयनाइजेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, बाय द कैथोड रेज। यहाँ से जो कैथोड रेज निकलती हैं वो इसको आयनाइज करके इसके इलेक्ट्रॉन्स बन गए। अभी ये सारे इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स जो कैथोड रे का आता वो भी इलेक्ट्रॉन्स, एंड जो आयनाइजेशन से जो इलेक्ट्रॉन्स निकला वो भी इलेक्ट्रॉन्स सारे गोज टू किस साइड जाएंगे, एनोड की तरफ जाएंगे। सारे एनोड्स की तरफ यहाँ से जितना भी इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं मूव टू द एनोड पॉइंट। ओके, एंड देन जब यहाँ से इसमें क्या है, एक नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, तो जब इससे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स निकल गया तो क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन बचा। तो जो प्रोटॉन बचेगा वो किस तरफ जाएगा, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज की तरफ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज क्या इलेक्ट्रोड, ये वाला नेगेटिव, तो यहाँ से ये प्रोटॉन्स मूव करने लगते हैं फ्रॉम द कैथोड साइड। क्लियर ऑल ऑफ यू? किसी को कोई डाउट तो नहीं है कि प्रोटॉन्स का एक्सपेरिमेंट कैसे होता है? मैं बाय नेम आपको नेम ले रहा हूँ, शिव प्रसाद, आदित्य, अनुष्का, आर्या, आर्यन, अवानी, भार्गव, हर्षदा। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या कि जो एनोड रे एक्सपेरिमेंट है इसको कैनाल रेज भी बोलते हैं, बिकॉज यहाँ से जो प्रोटॉन्स होते हैं इसके होल के थ्रू अंदर एंटर करते हैं, दैट होल के थ्रू। ओके, तो दैट्स वाई ये कैनाल होते हैं, कैनाल रेज बोलते हैं इसको, बिकॉज एक होल के थ्रू जाते हैं, एक कैनाल बना लेते हैं। ओके, तो उसको कैनाल रे एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। एवरीवन क्लियर ना कि यहाँ से प्रोटॉन्स की डिस्कवरी कैसी हुई? गोल्डस्टाइन ने डिस्कवरी की प्रोटॉन्स की उसी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से। अगर जे थॉमसन थोड़ा सा माइंड और लगाता तो वो प्रोटॉन्स भी बना सकता था। किसी बुक में लिखा है कि जे थॉमसन ने ही इसकी प्रोटॉन्स की डिस्कवरी की, बिकॉज ऑफ द दिस डिस्चार्ज ट्यूब और दिस कॉम्बिनेशन। जो ये सेटअप है, इस सेटअप के थ्रू उसको बुक बोलते हैं कि जे थॉमसन ने ही प्रोटॉन्स की खोज की या डिस्कवरी की, बट ऐसा नहीं है। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स का क्रेडिट गोज टू गोल्डस्टाइन को, इसको जाता है। ओके ऑल ऑफ यू, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मुझे बताओ, इज एनीवन हैव एनी डाउट्स? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड डाल्टन्स मॉडल्स। डाल्टन्स मॉडल में जो उसका मॉडल्स हैं उसका ड्रॉबैक्स है, उसमें कोई डाउट्स? इलेक्ट्रॉन्स का कोई डाउट्स? E/M रेशियो, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट्स, इज anybody having any doubts? No, sir. ओके नाउ, तो अभी क्या करते हैं हम लोग, लेक्चर यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। ओके क्लियर है? Yes, sir. ओके नाउ इफ एनीबडी हैव एनी डाउट्स, किसी भी पॉइंट पे किसी को प्रॉब्लम होती है, बिफोर गोइंग थ्रू दिस लेक्चर आपको अपना नोट्स पढ़ना है, एंड देन मैं तो यहाँ पे, आपने बोला ना कि थोड़ा सा फास्ट करिए, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके ये सारी चीजें बता दी हैं। ओके, फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास में आपको थ्योरी कम बताऊंगा, एंड जो कैलकुलेशन वाला पार्ट होगा, जो भी थ्योरी वाला पार्ट होगा मैं उसको जस्ट बोल के आपको रिमाइंड करा दूंगा, एंड जो कैलकुलेशन वाला पार्ट होगा उसके लिए मैं आपको पेन चलाऊंगा। ओके, एंड देन एक मैं आपको और बोलता हूँ कि बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट लेक्चर आपको आपका सीट सॉल्व करके लाना है। सीट मिला आपको या नहीं मिला? सीट मिला है एवरीवन? जो भी आपके पास सीट है समृद्धि, आपको वो सीट सॉल्व करके लाना है। ओके पृथ्वीराज, जो भी है, एवरीवन काइंडली सॉल्व द सीट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसकी सीट सॉल्व करके लाना है। नील पटेल, राजवर्धन, रोहित, सनिका, सतेश, जो भी सीट है आपको वो सीट सॉल्व करके लाना है, एंड देन वी विल डिस्कस कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं सीट में, क्या प्रॉब्लम्स आती है, हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो इफ एनीबडी हैव एनी डाउट्स लेट मी नो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, सर ये समझ नहीं आया, एंड फॉर नाउ मैं लेक्चर स्टॉप कर रहा हूँ। ओके, सो बाय एवरीवन। Bye, sir. Have a nice day. Bye, sir. Thank you, sir.